دیکھیں ہم سپورٹ کرتے آئے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور بہت کم ممالک آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو کہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہوں۔ ہماری خاصی بدنامی ہو چکی ہے، ہم بڑی مشکل سے گرے لسٹ سے باہر نکلے ہیں، تو ہمیں اب تھوڑا سا سبق سیکھنا چاہیے اس سے، کیونکہ آج کا جو دور ہے نا اس میں کوئی بھی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی۔ جو انٹیلیجنس اپریٹس ہیں مختلف ممالک کے، وہ اتنے اب سوفسٹیکیٹڈ ہو چکے ہیں، اتنے ہائی ٹیک ہو چکے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کی آرگنائزیشن وجود میں آتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے، فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور چیزیں میڈیا پہ آ جاتی ہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو دا ریزسٹنس فرنٹ کا پتہ ہی نہیں تھا پہلگام اٹیک سے۔ سر بہت سے لوگوں نے پہلی بار نام سنا ہے، پہلی بار نام سنا ہے جی کہ یہ آرگنائزیشن بھی موجود ہے اور اس میں یہ لوگ شامل ہیں اور ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑی جلدی کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اب تو اتنی اسٹرکٹ سرویلنس ہے انٹرنیشنل لیول پہ ان آرگنائزیشنز کی کہ اگر آپ کہیں پہ کیمپ بنائیں گے، کہیں پہ ٹرین کریں گے لوگوں کو، کہیں پہ انفلٹریشن ہوگی تو فوری طور پہ وہ چیز انٹیلیجنس اداروں کے علم میں آ جائے گی۔ تو اب آپ ہوڈ ونک نہیں کر سکتے کسی کو۔ لیکن سر آپ کو نہیں لگتا اب ان کی تعداد بڑھ گئی ہے پہلے کے مقابلے میں؟ پہلے اگر 2 4 6 گروپس ہوتے تھے تو اب انہی گروپس میں سے، جیسے ایم کیو ایم کا آپ نے نام لیا، اب ایم کیو ایم ایک تو نہیں رہی، حقیقی کچھ اور ہے، ایم کیو ایم کے پتہ نہیں کتنے ہی گروپ بن گئے۔ تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ جو حافظ سعید اور مسعود اظہر ٹائپ کے لوگ ہیں، ان کے گروپ میں سے بھی کئی دوسرے گروپ نکل آئے، اب انہیں کنٹرول کرنا یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ پہلے سے کہیں مشکل ہو گیا؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ، جیسے اب لشکر طیبہ تھی، اس کو آپ نے بین کیا تو وہ جماعت الدعوہ کی شکل میں وہ سامنے آ گئی، جماعت الدعوہ کے اوپر پابندیاں لگیں تو پھر وہ ریزسٹنس فرنٹ بن گیا، اور بھی اس طرح کی آرگنائزیشن بن گئی ہوں گی، سپلنٹر گروپس جو ہیں وہ بن گئے ہوں گے۔ تو جب تک کہ اسٹیٹ میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، اسٹیٹ کی پالیسی میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، ہم آہنگی نہیں ہوتی ہمارے سول اداروں میں اور ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں، اور آپ ایک کلیئر ویژن کے ساتھ اپنی فارن پالیسی نہیں بناتے، ایمبیگوٹی رکھتے ہیں اس میں، اور اس قسم کے لوگوں کو آپ ایز اے فارن پالیسی ٹول استعمال کرتے ہیں، تو پھر ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا نا۔ ان کو تو ختم آپ تب کریں گے کہ پہلے آپ اپنی ایک اوور آل ایک گلوبل جو فارن پالیسی ہے اس کو آپ ریوائز کریں، ان کا رول ختم کریں آپ ان آؤٹ فٹس کا، اور ایک فار ریچنگ جو اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد ایک کلیئر کٹ، ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک پروڈکٹیو، کنسٹرکٹیو فارن پالیسی بنائیں، اور ریجنل کنٹریز کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، تو پھر ان کی گنجائش ختم ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کانفلکٹ ہی رکھنا ہے، آپ نے لڑائی جھگڑے جاری رکھنے ہیں، آپ نے طاقت کے زور پہ کوورٹلی یا اوورٹلی اس قسم کے آپریشنز کرنے ہیں، پھر ان آرگنائزیشنز کو آپ رکھیں گے، پھر آپ کو ضرورت پڑے گی ان لوگوں کی۔ تو وہی آپ نے کیا ہوا ہے کہ ان کو فی الحال ہائبرنیٹ کروا دیا ہے، کل کو پھر آپ ان کو ایکٹیویٹ کر دیں گے۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ میں نے پہلے بتایا کہ ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی، اور یہ ملک کو، قوم کو نقصان پہنچاتی ہیں، آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں، آپ کے ملک کا امیج خراب کرتی ہیں، آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کو ڈاؤن گریڈ کرتی ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہم اب دنیا میں، اب جب بھی پاکستان کا نام آتا ہے تو ساتھ ٹیررزم کی بات ہوتی ہے۔ بھئی کیوں بھئی؟ کیا وجہ ہے؟ وہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے نا، یہ جو آؤٹ فٹس ہیں ساری، انہی تو ہمیں میرا خیال ہے بڑی ایک ریڈیکل چینج لانے کی ضرورت ہے اپنی فارن پالیسی میں، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، ہم ٹریڈ اینڈ کامرس کے اوپر، اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر فوکس کریں اور آگے چلیں، بجائے اس کے کہ لڑائی مار کٹائی ادھر، یعنی دھماکہ ہو جائے ادھر، اس کو مار دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ اس سے کبھی بھی آپ کو آپ میں اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی ان چیزوں سے۔ بڑی
टर्म और शॉर्ट साइटेड पॉलिसीज हैं ये सारी, जहाँ पे आप वायलेंस का सहारा लेते हैं, आप वायलेंस किसी के साथ करते हैं तो फिर वो वायलेंस आपकी तरफ भी आ जाता है, ऐसा ही है, हिट करते हैं आप। बिल्कुल ऐसे। अरे यही लगता है कि अब जब हमारे अपने ही सर पे ये सब कुछ पड़ने लगा है तो शायद हमें थोड़ी अकल आ जाए, लेकिन फिलहाल बहुत मुश्किल लग रहा है कि इन तमाम चीजों को एकदम से कंट्रोल किया जा सके। आप ये देखिए कि अभी यूनाइटेड नेशंस ने तो नहीं, लेकिन अभी ये 18 जुलाई को यूनाइटेड स्टेट्स ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है। और उनके पास रिलायबल इंटेलिजेंस भी मौजूद है कि ये जो आउटफिट है ये कश्मीर में ऑपरेट कर रही है और इसको बाहर से भी सपोर्ट मिल रही है, और ये एक नई आउटफिट है। इसका अगर आप नाम भी देखें द रेजिस्टेंस फ्रंट, तो वो एक जो ट्रेडिशनल हमारे यहाँ इस तरह की जिहादी तंजीमें रही हैं, नाम भी मुख्तलिफ है, यानी एक उन्होंने सेकुलर टच देने की कोशिश की है नाम को। जैसे अब जैश मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है, ये सारी जो है ये इनका एक ख़ास एक नोमेनक्लेचर होता था और उससे पता चलता था कि ये रिलीजियसली मोटिवेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन इसको उन्होंने थोड़ा सा सेकुलराइज कर दिया है। और इनकी जो टेक्निक्स हैं वो भी ज़रा डिफरेंट है। ये साइबर स्पेस में भी काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कहते अपने आप को ये है कि हम प्योरली एक इंडिजिनस ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये और इंडिजिनस पता नहीं किस हद तक है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक्सटर्नल सपोर्ट इनको हासिल है, इनको फंडिंग होती है, और ये लोग वहाँ पे कश्मीर में जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है वहाँ पे ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ये 2019 अगस्त 2019 में जब इंडिया ने कश्मीर का एक जो स्टेटस था, जो सेमी ऑटोनोमस स्टेटस था, उसको ख़त्म किया, तो उसके बाद फिर ये वजूद में आई ये ऑर्गेनाइजेशन। और जनवरी 2023 में इसको इंडिया ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया, और अभी जुलाई 2025 में अमेरिका ने भी कर दिया है। और इंडिया की कोशिश ये है कि यूनाइटेड नेशंस भी इसे जो रेजोल्यूशन 1267 है उसमें ऐड करे, जिसमें कि ऑलरेडी 139 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के नाम मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के और इंडिविजुअल्स के, जो कि टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, और ये सारी पाकिस्तान बेस्ड है। जी आरसू। लेकिन सर इतने मतलब फिर आप बिल्कुल सफेद झूठ जैसे कहते हैं, हम ऐसा कैसे कह देते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं, और हमारे यहाँ सिर्फ ये एलिगेशंस है, इसलिए कि हम FATF में भी 4 बार जा चुके हैं। और आपके ख्याल से इन लोगों को अगर पता है कि FATF में क्यों गए, तो इन चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा? करना नहीं चाहते या कर नहीं पा रहे? देखिए, अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी हमारे पास फौज है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटेलिजेंस का, कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी इसमें रीजंस हैं। एक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड है, एक स्ट्रेटेजिक बैकग्राउंड है इसका, कि हमने इन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने रखा हुआ है ये लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, और लो कॉस्ट ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें ये बड़ी सूदमंद होती हैं। हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका एक ये टूल रहा है अफगानिस्तान में भी और कश्मीर में भी। इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया, हमने अफगानिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया। तो ये हमारी एक कह लें कि एक तरह की जो स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहा है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जाए, वो हम करते रहे हैं। दोस्तों, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। TRF जो लश्कर तैयबा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसे UN ने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।
पाकिस्तान इस संगठन का लगातार प्रॉक्सी के तौर पर इसका इस्तेमाल करता रहा है अलग अलग, खास तौर पर भारत, जैसा कि अभी आपने देखा कि पहलगाम में जो भी हमला हुआ था तो इसकी जो जिम्मेदारी थी वो टीआरएफ ने ली थी। लेकिन जब ये मुद्दा उठने लगा तो उसके बाद इसने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। लेकिन जाहिर सी बात है, एजेंसियों के पास सबूत मिले हैं और इसकी वजह से अब यूएन में इसको एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया गया है। वहीं पर जैसे ही इसको आतंकी संगठन घोषित किया जाता है तो पाकिस्तानी सपोर्ट में आके खड़े हो जाते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो डबल स्टैंडर्ड है ना आतंकवाद को लेकर, ये सामने आ जाता है। भारत ने इसके रिगार्डिंग कई सारे सबूत यूएन को पहले भी दे चुके हैं और इस बार भी दिए हैं, जिसमें कई सारी जो घटनाएं, जिसमें पहलगाम हो, श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, इन सब जगहों पर जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं उसमें टीआरएफ का हाथ रहा है। तो भारत ने इससे जो जुड़े सबूत थे वे यूएन में पेश किए और फाइनली यूएन को भी उसे आतंकी संगठन घोषित करना पड़ा। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कुछ इनके मंत्री इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि भाई उनका इतिहास रहा है ऐसे संगठन को आगे बढ़ाने में, उनको मैनेज करने में, लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें कम होती जा रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से उनके रक्षा मंत्री ने टीआरएफ की तरफदारी की है उससे साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान हमेशा से ही डबल स्टैंडर्ड रखता है। एक तरफ वो आतंकवाद की खिलाफत की बात करता है और दूसरी तरफ लगातार उन लोगों को सपोर्ट करता है, उनको पाल कर रखता है, क्योंकि यही तो डॉलर लाने के भी काम करते हैं ना। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं कि उनका रिश्ता आतंकी संगठनों के साथ पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहने वाला है। क्योंकि भाड़े के टट्टुओं के तौर पर जो पाकिस्तानी सेना इस्तेमाल करती है वो इन लोगों को करती है। कई बार इनको ही पाकिस्तानी फौज के कपड़े पहनाकर आगे भेज दिए जाते हैं, क्योंकि ये जिहादी हैं, ये सारे जिहादी हैं। इनका मकसद सिर्फ मारना और मरना होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जो पाकिस्तान पहले ये तक मानने को तैयार नहीं होता था कि वो आतंकियों को पालता है और ये हमेशा कहता रहा था कि वो खुद आतंकवाद का शिकार है, इस पर हमें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये आतंकवादी उनको बोल रहे हैं जो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में जो बलोच भाई हैं वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और ये उनको क्या बताते हैं कि वो आतंकवादी हैं। तो भाई आपकी मानसिकता आपको मुबारक, लेकिन दुनिया को चाहिए कि ऐसे संगठन जो पाकिस्तान में एक्टिव हैं उन पर मिलकर कार्रवाई की जाए, उनको पूरी तरह से खत्म किया जाए। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।